आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार की शाम को हमनाबाद के सेडुल ग्राम में जनता दल सेकुलर का एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। बसवा कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार शन्नू सलगार ने बसवा कल्याण में आयोजित की प्रेस मीट। भारी बहुमत से जीत का किया दावा। राहुल गांधी की कर्नाटक में गन्ना किसानों से बातचीत आज, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कर्नाटक में होन्नाला नदी में नाव पलटने से 3 की हुई मौत, गायब हुए एक युवक की तलाश में जुटी पुलिस। मुस्लिम आरक्षण खत्म कर SC, ST और BC को दिया जाएगा, तेलंगाना में बीजेपी की रैली में अमित शाह का संबोधन। अब समाचार विस्तार से। रविवार की शाम को हमनाबाद के सेडुल ग्राम में जनता दल सेकुलर का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार CM फैज के अलावा जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, BSP से जेडीएस में आए हमनाबाद के नेता अंकुश गोखले के अलावा पार्टी कार्यकर्ता व दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर CM फैज और दूसरों ने संबोधित करते हुए जेडीएस को वोट देकर जिताने की सभी ग्रामवासियों से अपील की। इस अवसर पर भारी संख्या में शेड्यूल ग्राम निवासी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ನಮಗೊಂದು ಮೌಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುನಃ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ 200 300 500 ಅಷ್ಟೇ ಕರಿ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರ್ತವೆ? ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೋಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೌಕ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೌಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ रविवार को हमनाबाद तालुके के चंदनहल्ली में हमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार CM फैज के हाथों भारी संख्या में स्थानीय लोग जेडीएस में शामिल हो गए। इस अवसर पर हमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार CM फैज, जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, अंकुश गोखले व दूसरे नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर जेडीएस नेता अंकुश गोखले ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೇ, ಪ್ರಮುಖರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ JDSನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ CM ಫಯಾಜ್ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ 2023ರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಾರಂಬಾರ ಸತ್ತ ನೋಡಿ, ಬಾರಂಬಾರ ರೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಕರೋಡೋ ರೂಪಾಯಿ ಅವು. ಚುನಾವಣೆಯಾಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಹಣ್ಣ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಮದಾನಿ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾವೆ. ಪಿನ್ ಹುಡ್ದಿಕ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ. 1-2 ನಮ್ಮನೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಒಂದು ನೋಟಿಗೆ ಪಿನ್ ಹೊಡ್ದಿಕ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಓಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಬೇಕು, ಓಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾರು ದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ಅದ್ರ ಕೂಡ ದಯ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ CM ಫಯಾಜರು, ಅಂಕುಶರು, ದಲಿತ ವರ್ಗದವರು ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರಗೆ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಓಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು CM ಆಲತ್ತರಿ, ದಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ.
CM ಸಾಹೇಬ್ರು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರ ಈಗ ಅಂಕೋಶರೇ ಹೇಳ್ದು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಮಾತಿಗೆ. ಖರ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತದ. ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಹತ್ವದ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಕೋಶರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಡ್ಯಾರ. ಇದು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಎಂಬುದು ಈ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರ ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಓಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಅದ ಅವ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ಹಂಗಾಗರ್ಸಿ ತಿಳ್ಯಾರು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮೊದಲು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ನಿಂತಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಲಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಜೆಂಡಾ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಲೋಕಸಭೆದಾಗ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುಟ್ಟಿನವ್ರು ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ 371 ಜನತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ. बसवा कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार शन्नू सलगार ने बसवा कल्याण में प्रेस मीट आयोजित की। इस अवसर पर उनके साथ बसवा कल्याण के पूर्व विधायक व बीजेपी नेता MG मूले के अलावा पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए शन्नू सलगार ने अपने क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए कार्यों के बारे में बताया और इस बार पिछली बार से ज्यादा बहुमत से जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो इस बार 50,000 वोटों की बहुमत से जीतेंगे। शन्नू सलगार ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ शन्नू सलगार की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये चुनाव एक गरीब किसान के बेटे और एक पैसे वाले के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि उस पैसे वाले की हार होगी। बसवा कल्याण से KP न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಬಹುತೇಕ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು 50,000 ವೋಟ್ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ 40 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ನೋಡಿನಿ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೋಡಿನಿ, ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಶಾಸಕ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕ ಆಗಿರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೇ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಧಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಗೌರವ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಸಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರ ಈ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತದ ಅದೇ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಾಜನತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ MG ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಸಲ ನಾನು कैंडिडेट ಆಗಿದ್ದೇನೆ. कन्नड़ में बोल सकता हूँ क्या? हिंदी में शुरू करो, हिंदी में बोलो भाई, आपको पूछ रहा हूँ, चलेगा हिंदी? शायद ये शरणू सलगर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव धर्म और अधर्म की चुनाव है। ये लड़ाई है एक गरीब किसान की बेटे का वर्चस एक बड़ा पैसे वाला का लड़ाई है। मेरे को उम्मीद है, मेरे को भरोसा है, मैं हूं गए गरीब किसान का बेटा, मगर लोग कभी भी लड़ाई, आपको मालूम है, लड़ाई एक समान की होती है। लड़ाई जो लड़ाई लगती है दोनों कैंडिडेट इक्वल रहते हैं, मगर इधर ऐसा नहीं है। बसवा कल्याण में कांग्रेस से है माजी मुख्यमंत्री के बेटा, बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर पैसे वाला, उनके सामने समान आदमी नहीं है, उनके सामने है एक गरीब किसान का बेटा। उनके सामने शायद मेरे को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो पहले कांग्रेस की हो गई थी, बाद में शरणू सलगर के, तो पार्टी को जितना विश्वास है उतने बड़ा पैसे वाला आदमी के सामने सिर्फ 3 एकड़ का खेत है, एक गरीब किसान की बेटे को लड़ाई अगर लड़ने के लिए अवकाश दिए बोले तो मेरे को विश्वास है बसवा कल्याण की पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बसवा कल्याण की महाजनता शरणू सलगर के साथ में है बोल के।
आज सोमवार को तालुका चिटगुप्पा के कुड़म्बल ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर बी पाटिल ने चुनाव प्रचार किया और कुड़म्बल ग्राम के लोगों से कहा कि पिछली बार आप सभी कांग्रेस को आशीर्वाद देकर जिताया था, इस बार भी अपना मूल्य वोट कांग्रेस को दें और आपका सहयोग और आशीर्वाद दें। इस अवसर पर कांग्रेस नेता व पार्टी कार्यकर्ता और ग्राम के लोग आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजीम की रिपोर्ट। ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 10ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಮಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಜನತೆ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಕನಿಗೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತಾವು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎದುರಿದೆ. ಇವತ್ತಿದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚುನಾವಣೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಿದಾರ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ, ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೂಡಂಬಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ದೇಶ कलबुर्गी में जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद कलबुर्गी के कार्यालय में रविवार को बसवा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दीप जलाकर इस जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया और बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद कलबुर्गी के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल तेगलतिप्पी, सेक्रेटरी शिवराज अंदागी, ट्रेजरर शरण राज चप्परबंदी और माइनॉरिटी मेंबर डॉक्टर रहमान पटेल आर्टिस्ट के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी उपस्थित सदस्यों का उपहार देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद कलबुर्गी के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल तेगलतिप्पी ने संबोधित करते हुए कहा कि बसवन्ना द्वारा दिए गए संदेशों का वर्तमान समय में पालन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर राजेंद्र मदबूल, रेवण सिद्धप्पा हुट्टी, बसवंत राव, गुरु बसप्पा, सज्जन शेट्टी, माला डोनूर, ज्योति कोटनूर, कविता कवाले और अन्य उपस्थित थे। जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद कलबुर्गी के माइनॉरिटी मेंबर डॉक्टर रहमान पटेल आर्टिस्ट ने मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन,
ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के अपने दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गन्ना किसानों एवं युवाओं से बातचीत करेंगे और बाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दोपहर 2 बजे बेलगावी जिले के रामदुर्गा में गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। बाद में वो गदग में युवा संवाद में हिस्सा लेंगे। गांधी इसके बाद शाम को हावेरी जिले के हंगल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हंगल के पड़ोसी शिगांव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता इसके बाद हुबली जाएंगे, जहां से वो दिल्ली जाने वाले विमान में सवार होंगे। राहुल ने रविवार सुबह कुदाल संगम से कर्नाटक के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने बसवेश्वर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बसवण्णा के नाम से भी जाने जाने वाले बसवेश्वर लिंगायत संप्रदाय के संपादक थे। वहीं कुदाल संगम कर्नाटक के प्रभावशाली समुदायों में से एक लिंगायत संप्रदाय का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कर्नाटक के उडुपी जिले के ब्रह्मवर कस्बे में एक नदी में नाव पलटने से 3 युवक डूब गए और एक लापता हो गया। ये घटना रविवार को हुन्नला नदी के हुड में घटी, जिसकी जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। मृतकों की पहचान इबास, फजन और सुफन के तौर पर हुई है। फरहान, जो उनके साथ बोट पर शामिल था, फिलहाल गायब है। ये सभी युवक अपने परिजनों के घर रमजान मनाने के लिए आए थे। रविवार की शाम वे सभी मछली पकड़ने के लिए नदी के पास गए और नाव पलटने की वजह से नदी में डूब गए। पुलिस के अनुसार युवक नदी में ज्वार आने की वजह से डूब गए। वहीं गायब हुए युवक की तलाश फिलहाल जारी है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 20 दिन से कम का समय बचा है। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच दूध उत्पादों का मुद्दा गर्म हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने गुजरात स्थित सहकारी डेयरी अमूल और कर्नाटक स्थित नंदिनी के बीच संभावित विलय से इनकार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना से कहा कि अगर वो तेलंगाना की सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों का आरक्षण रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को दिए जाने वाला 4% आरक्षण SC, ST और BC के लिए आरक्षित होगा। अमित शाह ने रविवार की शाम तेलंगाना के चेवल्ला में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ओवैसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की कि गाड़ी का स्टीयरिंग AIMIM के हाथ में है। उन्होंने कहा कि वो मजलिस से नहीं डरते। अमित शाह ने आरोप लगाया कि BRS कांग्रेस से मिलने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा सत्ता हासिल करने के लाख प्रयास करने के बावजूद आगामी चुनाव में तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आ रही है, क्योंकि तेलंगाना के लोग बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये अगले चुनाव में बीजेपी की जीत का सबूत है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्ट सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि पूरा देश KCR सरकार के प्रदर्शन को देख रहा है। हम मनाएंगे, हम नहीं डरते हैं मजलिस से। मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बात। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कही। अब अमित शाह के इस बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। राज्य में मुस्लिम कोटा खत्म करने के बयान को लेकर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। वे केवल तेलंगाना को सिर्फ फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने भाजपा से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, यदि शाह SC, ST और OBC के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल के अंतिम में होंगे। बीजेपी शासित कर्नाटक ने हाल ही में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था और 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले इसे 2 प्रमुख हिंदू समुदाय के बीच सामान्य रूप से वितरित करने का फैसला किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार की शाम को हमनाबाद के सेडोल ग्राम में जनता दल सेकुलर का एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। बसवा कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार शन्नू सलगार ने बसवा कल्याण में आयोजित की प्रेस मीट। भारी बहुमत से जीत का किया दावा। राहुल गांधी की कर्नाटक में गन्ना किसानों से बातचीत आज, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कर्नाटक में होन्नाला नदी में नाव पलटने से 3 की हुई मौत, गायब हुए एक युवक की तलाश में जुटी पुलिस। मुस्लिम आरक्षण खत्म कर SC, ST और BC को दिया जाएगा, तेलंगाना में बीजेपी की रैली में अमित शाह का संबोधन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।